Good morning, students. The course code is EDM 102 and the course title is Fundamentals of Artificial Intelligence in Education. Today we are going to study about different types of datasets that are structured datasets, unstructured datasets, time series datasets, geospatial datasets, text datasets, image datasets, learning outcomes. After the end of lecture, the students will be able to explain different types of datasets. The students will be able to differentiate among different types of datasets. Structured datasets. Structured datasets are data that is organized into rows and columns. It is often stored in databases, spreadsheets, and other tabular forms. The data is usually well-defined and easy to analyze. Structured datasets are often used for predictive analytics, forecasting, and other data-driven decision-making. संरचित डेटा सेट। संरचित डेटा सेट वे डेटा होते हैं जो पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित होते हैं। इसे अक्सर डेटाबेस, स्प्रेडशीट और अन्य सारणीबद्ध रूपों में संग्रहित किया जाता है। डेटा आमतौर पर अच्छी तरह से परिभाषित और विश्लेषण करने में आसान होता है। संरचित डेटासेट का उपयोग अक्सर भविष्य कहने वाला विश्लेषण के लिए किया जाता है, पूर्वानुमान और अन्य डेटा संचालित निर्णय लेना। Structured datasets can be used to identify trends, patterns, and correlations in data. They can also be used to make predictions about future events or outcomes. Structured datasets can help organizations make better decisions and take more informed actions. डेटा में रुझान, पैटर्न और सहसंबंधों की पहचान करने के लिए संरचित डेटासेट का उपयोग किया जा सकता है। उनका उपयोग भविष्य की घटनाओं या परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए भी किया जा सकता है। संरचित डेटासेट संगठनों को बेहतर निर्णय लेने और अधिक सूचित कार्य करने में सहायता कर सकते हैं। Unstructured datasets. Unstructured datasets are data that is not organized in a specific way. This type of data is often found in text documents, emails, images, audio files, and other sources. Unstructured datasets can be difficult to analyze because they are not in a standard format. असंरचित डेटासेट। असंरचित डेटासेट ऐसे डेटा होते हैं जो किसी विशिष्ट तरीके से व्यवस्थित नहीं होते हैं। इस प्रकार का डेटा अक्सर टेक्स्ट दस्तावेजों, ईमेल, छवियों, ऑडियो फाइलों और अन्य स्रोतों में पाया जाता है। असंरचित डेटासेट का विश्लेषण करना कठिन हो सकता है क्योंकि वे एक मानक प्रारूप में नहीं हैं। Unstructured datasets can be used to identify trends, patterns, and correlations in data. They can also be used to make predictions about future events or outcomes. Unstructured datasets can help organizations make better decisions and take more informed actions. डेटा में रुझान, पैटर्न और सहसंबंधों की पहचान करने के लिए असंरचित डेटासेट का उपयोग किया जा सकता है। उनका उपयोग भविष्य की घटनाओं या परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए भी किया जा सकता है। असंरचित डेटासेट संगठनों को बेहतर निर्णय लेने और अधिक सूचित कार्रवाई करने में सहायता कर सकते हैं। Time series datasets. Time series datasets are data that is organized in chronological order. This type of data is often found in financial markets, weather data, and other sources. Time series datasets can be used to identify trends, patterns, and correlations in data over time. समय श्रृंखला डेटासेट। समय श्रृंखला डेटासेट डेटा होते हैं जो कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार का डेटा अक्सर वित्तीय बाजारों, मौसम डेटा और अन्य स्रोतों में पाया जाता है। समय श्रृंखला डेटासेट का उपयोग समय के साथ डेटा में रुझान, पैटर्न और सहसंबंधों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। Time series datasets can be used to make predictions about future events or outcomes. They can also help organizations make better decisions and take more informed actions. Time series datasets can be used to identify patterns that may not be visible in other types of datasets.
समय श्रृंखला डेटासेट का उपयोग भविष्य की घटनाओं या परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। वे संगठनों को बेहतर निर्णय लेने और अधिक सूचित कार्रवाई करने में भी मदद कर सकते हैं। समय श्रृंखला डेटासेट का उपयोग ऐसे पैटर्न की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जो अन्य प्रकार के डेटासेट में दिखाई नहीं दे सकते हैं। Exercise: fill in the blanks. Dash datasets are data that is organized into rows and columns. Dash datasets are data that is not organized in a specific way. Dash datasets help organizations to make better decisions and take more informed actions. Answers: structured datasets are data that is organized into rows and columns. Unstructured datasets are data that is not organized in a specific way. Time series datasets help organizations to make better decisions and take more informed actions. Geospatial datasets. Geospatial datasets are data that is organized according to geographic coordinates. This type of data is often found in satellite images, maps, and other sources. Geospatial datasets can be used to identify trends, patterns, and correlations in data across different locations. भूस्थानिक डेटासेट। भूस्थानिक डेटासेट ऐसे डेटा होते हैं जो भौगोलिक निर्देशांक के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार के डेटा अक्सर उपग्रह चित्रों, मानचित्रों और अन्य स्रोतों में पाए जाते हैं। भूस्थानिक डेटासेट का उपयोग विभिन्न स्थानों में डेटा में रुझान, पैटर्न और सहसंबंधों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। Geospatial datasets can be used to make predictions about future events or outcomes. They can also help organizations make better decisions and take more informed actions. Geospatial datasets can be used to identify patterns that may not be visible in other types of datasets. भविष्य की घटनाओं या परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए भूस्थानिक डेटासेट का उपयोग किया जा सकता है। वे संगठनों को बेहतर निर्णय लेने और अधिक सूचित कार्रवाई करने में भी मदद कर सकते हैं। भूस्थानिक डेटासेट का उपयोग ऐसे पैटर्न की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जो अन्य प्रकार के डेटासेट में दिखाई नहीं दे सकते हैं। Text datasets. Text datasets are data that is organized in textual form. This type of data is often found in emails, documents, tweets, and other sources. Text datasets can be used to identify trends, patterns, and correlations in data across different sources. टेक्स्ट डेटासेट वे डेटा होते हैं जिन्हें टेक्स्ट के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार का डेटा अक्सर ईमेल, दस्तावेज, ट्वीट्स और अन्य स्रोतों में पाया जाता है। पाठ डेटासेट का उपयोग विभिन्न स्रोतों में डेटा में रुझान, पैटर्न और सहसंबंधों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। Text datasets can be used to make predictions about future events or outcomes. They can also help organizations make better decisions and take more informed actions. Text datasets can be used to identify patterns that may not be visible in other types of datasets. टेक्स्ट डेटासेट का उपयोग भविष्य की घटनाओं या परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। वे संगठनों को बेहतर निर्णय लेने और अधिक सूचित कार्रवाई करने में भी मदद कर सकते हैं। टेक्स्ट डेटासेट का उपयोग ऐसे पैटर्न की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जो अन्य प्रकार के डेटासेट में दिखाई नहीं दे सकते हैं। Image datasets. Image datasets are data that is organized in image form. This type of data is often found in photographs, videos, and other sources. Image datasets can be used to identify trends, patterns, and correlations in data across different sources. छवि डेटासेट वह डेटा होता है जो छवि के रूप में व्यवस्थित होता है। इस प्रकार का डेटा अक्सर तस्वीरों, वीडियो और अन्य स्रोतों में पाया जाता है। छवि डेटासेट का उपयोग विभिन्न स्रोतों में डेटा में रुझान, पैटर्न और सहसंबंधों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। Image datasets can be used to make predictions about future events or outcomes. They can also help organizations make better decisions and take more informed actions.
Image datasets can be used to identify patterns that may not be visible in other types of datasets. छवि डेटासेट का उपयोग भविष्य की घटनाओं या परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। वे संगठनों को बेहतर निर्णय लेने और अधिक सूचित कार्रवाई करने में भी मदद कर सकते हैं। छवि डेटासेट का उपयोग ऐसे पैटर्न की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जो अन्य प्रकार के डेटासेट में दिखाई नहीं दे सकते हैं। टेक्स्ट बड़ी भाषा या टेक्स्ट टू इमेज मॉडल जैसे जीपीटीजे, जीपीटीएनयू, M2M100, कोडजिन, स्टेबल डिफ्यूजन को रेस्ट एपीआई और खेल के मैदान के माध्यम से एक्सेस प्रदान करता है। उनका उपयोग उदाहरण के लिए पाठ पूरा करने, प्रश्न का उत्तर देने, वर्गीकरण, चैट, अनुवाद, छवि निर्माण के लिए किया जा सकता है। टेक्स्ट सिंथ मानक जीपीयू और सीपीयू पर तेजी से अनुमान, इसलिए कम लागत प्राप्त करने के लिए कस्टम अनुमान कोड को नियोजित करता है। टेक्स्ट सिंथ बड़ी भाषा या टेक्स्ट टू इमेज मॉडल जैसे जीपीटीजे, जीपीटीएनयू, M2M100, कोडजिन, स्टेबल डिफ्यूजन को रेस्ट एपीआई और खेल के मैदान के माध्यम से एक्सेस प्रदान करता है। उनका उपयोग उदाहरण के लिए पाठ पूरा करने, प्रश्न का उत्तर देने, वर्गीकरण, चैट, अनुवाद, छवि निर्माण के लिए किया जा सकता है। टेक्स्ट सिंथ मानक जीपीयू और सीपीयू पर तेजी से अनुमान, इसलिए कम लागत प्राप्त करने के लिए कस्टम अनुमान कोड को नियोजित करता है।